હા, નોર્મલ તમે જે મંત્ર જે વધારે બોલતા હોય એ જ, આમાં કોઈ ખાસ કોઈ મંત્ર નથી હોતા. વિધિ જરૂરી હોય છે. વિધિ એટલે એટલા માટે કે આ એક દિવસ એવો છે જેને આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું ટ્રાન્ઝિટ કેવું કહેવાય કે ગયું ગયું છે ને નવું આવી રહ્યું છે, રાઈટ? એટલે સમજો કે તમારા નવા એકાઉન્ટો, નવું ખાતાવણી કરવાની જેની હોય ને, જૂનો ચોપડો બંધ કરીને નવો ખોલવાનો, એ બધું ખાસ દિવાળી નવા બેસતા વર્ષે ફરીથી નવું લખે કે આ નવું વર્ષ શરૂ થયું. અને દિવાળી એટલે જ લક્ષ્મી પૂજન, ધન પૂજન, જે પણ તિજોરીમાં આપણા જે પણ પેલા રૂપા નાણું પડ્યું હોય ને, ખાસ ચાંદીના સિક્કા ને બધું, એની પૂજા કરે, પૂજન કરે. આપણે તો અહીંયા ખબર નહીં, બાકી આમ નોર્મલી તો આ લોકો ખાસ આ દિવસે, તને ખ્યાલ હશે કે પેલા નવગ્રહના પેન્ડન્ટ બનાવેલા હોય, નવગ્રહના જે પેન્ડન્ટ વેચાય છે ને એની પૂજા ખાસ આ દિવસે કરે. હા, પંચામૃત એવું નહીં, પણ કાચું દૂધ, દહીં, એમ 5 વસ્તુ, એમ અને પાણી, એમ બધું ભેગું કરી અને એને ખાસ એ લોકો એમાં ધુએ અને આપણે તિજોરીમાંથી રૂપિયા ને બધું કાઢીએ ને પછી પાછું એને તિજોરીમાં મૂકી દેવાનું, જે ખાલી વર્ષે જ આવી રીતે બહાર આવે. અને તમે જે ચોપડા લખો ને એમાં સ્પેશિયલી લખાય કે ગૌતમ સ્વામીની લબ્ધિ હોજો, પછી આનું સૌભાગ્ય હોજો, એમ દરેક વસ્તુ જે ખાસ મહત્વની જે આપણને જોઈતી હોય ને એ વસ્તુને કાગળ પેન ઉપર કંકુથી લખે. સૌથી વધારે મહત્વ લખવાનું છે. હા, સમજો ને કે મને કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય ને હું લખું ને, એમ આ દર વર્ષે લખવાનું. 9 કે 11, 20 લખવાની છે. એકચ્યુઅલી એમાં કઈ છે જ નહીં, આપણી 20 લખવાની છે. આપણને શું જોઈએ છે, શું સુખ જોઈએ છે, શું સારું જોઈએ છે, એ આપણે દીવો અને ધૂપ અને ભગવાનની પૂજા કરીને બધું કરીને આપણે માંગીએ છીએ કે ભંડાર હંમેશા ભરપૂર રહેજો, કુબેર ભંડારી જેવો ભંડાર હોજો, એમ. એટલે આપણે સુખ, સૌભાગ્ય અને બધું જ માંગીએ છીએ દિવાળીએ ભગવાન પાસે, એવું વાત છે. ધન્વંતરી એટલે ધનસ થયા ને, ધન્વંતરી દેવ જ તો કુબેર છે. હા, ભંડારી કહેવાય છે ને ખજાનચી છે કુબેર. ધન્વંતરી, ધનના દેવ. એટલે તમે એની ધન્વંતરી પાસે માંગવું એ ધનતેરસ એટલે શું કે તમે ધન્વંતરી દેવ પાસે આ બધી વસ્તુઓ માંગી રહ્યા છો. એટલે કોઈ કાલે કરશે, નહીં તો કોઈ દિવાળીના દિવસે ચોપડા લખશે ત્યારે કરશે, પણ કરે તો ખરા જ. ધનની પૂજા ખાસ થાય ખરી. ના, એવું એક જ વાર હોય. કોઈ પણ વસ્તુ એક જ વાર કરવાની, 3 દિવસ કે રોજ કરવાની એવું હોતું નથી. એટલે દિવાળીના દિવસે તો ખાસ, કારણ કે પૂજા તો ત્યારે જ કરવાની છે, દિવાળીએ જ. દિવાળીએ જ તમારી ઘરમાં જે પણ ભગવાનને, જે પણ આપણે મૂર્તિને, જે પણ વસ્તુ આપણે જે રાખતા હોઈએ એની પૂજા દિવાળીના દિવસે ખાસ હોય. दिवाली के दिन क्या है, जो भी हमारे घर में जो भी इष्ट देव है, जो भी हम तिजोरी में खास रखते हैं, रूपा नाणु उसको बोला जाता है, सिक्के, चांदी के पुराने सिक्के. जैसे कोई शादी ब्याह में जो रुपया देते हैं ना, वो नया नहीं देते, पुराना देते. पहले उसको रानी छाप रुपए बोलते थे उसको, उसके ऊपर रानी का फोटो रहता है या ऐसा कुछ रहता है, श्री सवा लिखा हुआ होता है. तो वो सारे सिक्के जो भी आपके पास है, जो आपके इकट्ठे किए हुए हैं, जो तिजोरी में रखे हुए, वो सबको बाहर निकाल के उसकी पूजा दिवाली के दिन करते हैं. क्योंकि अभी साल खत्म हुआ है, ये जो धन हमारे तिजोरी में संचित पड़ा है वो ऐसे ही ऐसे रहे, नया वृद्धि हो. मतलब समझ में आ रही है ना सीधी बात. भगवान से हम कहते हैं कि ये पुराना धन है वो पड़ा रहे और नया धन आए, लेकिन धन खाली ना हो.
भगवान से धन मांगने का यही त्योहार है। અત્યારે ફોન કરશે તો કેમ ચાલશે? બોલો. હલો હલો, સંભળાય છે મારો અવાજ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलो, आज अपना जो भी है वो वक्तव्य शुरू करते हैं। सुनाई दे रहा है ना मेरी आवाज? तो ठीक है, चलो। दिवाली, धनतेरस, काली चौदस और नया साल, ये थोड़ी इसकी बात करेंगे हम। खास करके दिवाली में क्या क्या करते हैं या क्या किया जाता है उसके मामले में आप सबको जानना था, तो उसकी चर्चा करेंगे। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसके बहुत से कारण है। ऐसा हम कोई हिंदू में मानते कि ये राम जी जब वापस आए रावण का वध करके, तो उनके मान में ये दिवाली शुरू की गई। अगर ये बात है तो जैनों में ये मानते हैं कि परमात्मा मायू स्वामी का मोक्ष निर्वाण हुआ है, उसके बाद ये दिवाली शुरू की गई। अगर ये दिवाली उस वक्त से शुरू हुई तो उससे पहले भी तो दिवाली शुरू हो रही थी। जैसे हम परमात्मा महावीर की बात करेंगे तो राम जी तो उनसे पहले हुए। हम ऐसी कोई बातचीत पे जाए और उसी से कोई चीज को पकड़ ले, ये पॉसिबल नहीं। हमें एक चीज को समझना है और वो चीज ये है कि दिवाली और उसके बाद नया साल विक्रम संवत से जाना जाता है। और एक चीज ये भी कहते हैं कि जब विक्रम राजा जब हुए और विक्रम राजा ने ये संवत शुरू किया, तब उनके नाम से ये विक्रम संवत के नाम से शुरू हुआ है। अगर विक्रम संवत ने ये शुरू किया है तो राम जी उससे पहले हो गए थे। इसीलिए हम सिर्फ आज एक ही चीज की चर्चा करेंगे। दिवाली हमारे लिए एक साल खत्म हुआ है और दूसरा नया साल शुरू हो रहा है। वो दो के बीच का ट्रांजिट पीरियड है ना? मतलब एक साल आपका खत्म हो गया और नया साल आपका शुरू हुआ है। साल खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं पता है? पूरे साल की खतवनी करते हैं, उसका हिसाब किताब करते हैं कि ये पूरे साल में क्या हुआ, पैसे का खर्चा क्या है, आमदनी क्या है, लेन देन क्या है, वो पूरा आपका जमा उधर बैलेंस खत्म करने के बाद नई खतवनी करते हैं। तो स्पेशली ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अकाउंट में जो खर्चा हुआ, जब जमा उधर प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस रहती है, वो दिवाली के दिन हिसाब करते हैं। और नए साल के दिन जब नया साल शुरू होगा तो दूसरे दिन सुबह दिया जला के नए साल के दिन नया खाता खोला जाता है कि भाई आज ये संवत ये शुरू हुआ है। और आज से सबसे पहले धर्मादा, आप जो भी मंदिर में या कहीं भी दान लिखो तो सबसे पहले धर्मादा का नया खाता धर्मादा से ही खोला जाता है। ये दिवाली का सबसे बड़ा जरूरी व्यवहार है। अब उसको हम समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। देखो, दिवाली अमावस के दिन है और नया साल शुरू हो रहा है, नया बैसता महीना। अब दोनों का डिफरेंस समझो। दिवाली के दिन आप क्लोज करते हो, पूरे साल का अकाउंट क्लोज कर रहे हो। मतलब आपने अमास के दिन, अमास को अच्छी नहीं मानी, कभी भी नहीं मानी। कोई भी नया काम शुरू करोगे अमावस को नहीं करोगे। तो जो काम खत्म करना है वो अमावस को किया जाता है, और जो नया शुरू करना है वो आप नए साल के दिन करोगे।
तो ये बिठाने के लिए ही कि भाई मेरा नया पुराना साल का जो भी पुराना अकाउंट है, जो भी जमा उधार है, वो सारा मैंने ख़त्म कर दिया। उसमें भी स्पेशली आपको पता पहले से ही चल जाता है धनतेरस के दिन ही कि आप प्लस में हो या माइनस में हो, क्योंकि रोज का हिसाब रोज लिखना है और दिवाली के दिन उसको ख़त्म करना है। तो आपको मालूम पड़ जाता है। इसीलिए काली चौदस के दिन ऐसा बोला जाता है कि घर से कजिया बाहर निकालो। आपको मालूम है काली चौदस उसका नाम क्यों बोला है? चौदस के दिन खास ऐसे बोला जाता है कि भजिया करो और कजिया घर से बाहर निकालो। भजिया बना के 4 रास्ते पे उसको रखा जाता है। काली चौदस के दिन स्पेशली कोई भी भजिया बनाया जाता है और उसको 4 रास्ते पे जाके डाल के आते हैं, ये बोल के कि घर से कजिया बाहर निकला। अब घर से कजिया क्यों बाहर निकाला? क्योंकि हो सकता है कि हर दिवाली पे नफा ना हुआ हो, है ना? कभी कभी साल में एंडिंग में आपको पता चले कि ये साल तो हमारा पूरा का पूरा खर्चा ही ज्यादा हुआ है। जैसे इस बार कोरोना में ऐसा हुआ है। ये कोरोना में धंधा बिजनेस तो हुआ नहीं है, नुकसान ज्यादा हुआ है। तो अगर ये साल जो आप खतवनी होगी ना, वो सबकी यही बताएगी कि आप कर्जे में ही हो। तो काली चौदस के दिन भजिया करके सबसे पहले कजिया बाहर निकालेंगे, ये बोल के कि ये साल बहुत नुकसान हुआ है, सिर्फ खर्चा हुआ है, कोई नफा नहीं हुआ है। तो वो सारा कजिया जो हमारे दिमाग में रहता है, हम ये सोचते हैं कि ये साल तो बहुत खराब गया, ये साल तो बहुत खराब गया। तो ये जो भी बैड एनर्जी है ना, जो खराब सोच है ना, वो काली चौदस के दिन सबको बाहर निकाल के आना है। काली चौदस है ही उसके लिए। उसको वैसे नरक चतुर्दशी बोला गया है। नरक चतुर्दशी क्यों बोला है? क्योंकि नरक यम यम दीपम नाम है, दिवाली का दूसरा नाम है यम दीपम। साउथ में इसको यम दीप बोला गया है। तो नरक चतुर्दशी और यम दीपम इसीलिए बोला है कि भाई ये सारा आप अपना पुराना सारा हिसाब किताब, पैसे की लेन देन सब यहाँ खत्म करो। दिवाली के दिन आपका खाता खत्म हुआ। तिजोरी में से जो भी धन्वंतरी का नाम ही धन देने वाले देव, तो कुबेर देव को धन्वंतरी कहा गया है। उसके बाद लक्ष्मी जी को भी धन्वंतरी कहा गया है। लक्ष्मी का मतलब ही रूपा नाणु। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जितने भी घर में पड़े होते हैं ना, ये कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप कभी भी घर से बाहर नहीं निकालते। कुछ ऐसी लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या लक्ष्मी जी के सिक्के हो या वो रूपा नाणु जो बहुत बहुत पीढ़ी से चांदी के सिक्के जिसके ऊपर श्री सवा लिखा हो, याद रखना ये चांदी के सिक्के के ऊपर ही श्री और बाजू में सवा लिखा हुआ होता है, शुभ लाभ लिखा हुआ होता है। वो सारे सिक्कों को बाहर निकाला जाता है। दूसरे अभी आपके घर में तो पता नहीं है, लेकिन पुराने पुराने घरों में एक ऐसा कछुआ बनाया जाता था, चांदी का, सोने का या पेंडेंट हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर 9 ग्रह जड़े हुए होते हैं। आप देखो 9 रत्न ग्रह बहुत मिलते हैं पेंडेंट बाहर, आपको ये चीज बहुत बाहर मिलेगी। वो 9 ग्रह की पूजा दिवाली के दिन हमेशा की जाती। ये 9 ग्रह को कच्चे दूध से, दही से, पानी से, सब उससे बराबर उसका प्रक्षाल किया जाता है। प्रक्षालन पुराने निकाले हैं, एक साल में एक ही बार इनकी पूजा होती है। उसको पहले दूध और दही से, कच्चे दूध और दही से सफाई की जाती है। उसके बाद पानी से धो के उसके ऊपर कंकु की टिकी मतलब पूजा की जाती है। कंकु से उसको चांदला किया जाता है, कंकु से किया जाता है। इसका चांदला हमेशा कंकु से होता है। कंकु से इसीलिए कि ये कंकु बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। और आप देखोगे दिवाली के दिन ही ये सब होता है। दिवाली के दिन क्यों मालूम है? धनवंतरी के दिन आप धनतेरस को, आप दिवाली को ना करो और धनतेरस को करो, ऐसी गलती मत करना। क्यों पता है? क्योंकि दिवाली के दिन क्यों, धनतेरस तक तो आप धन घर में लाओ, आप नई कोई चीज खरीदो, ठीक है, नहीं खरीदो कोई बात नहीं,
लेकिन काली चौदस के दिन जो भी दिमाग में जो भी घर के झगड़े, पुराने झगड़े, वो सारे काली चौदस एक है ही उसके लिए कि कजिया सब अपने मन से, अपने दिल से, दिमाग से उसे बाहर निकालो। आप अपने अंदर से जो कजिया बाहर निकालोगे ना, स्पेशली दिवाली के दिन, वो कजिया निकालने के बाद नई दिवाली लिखना सबसे ज्यादा शुभ होता है। आप आपने अपने दिमाग से सारा जो खोट था, जो खोट के प्रति जो गुस्सा था, जो घर में किसी व्यक्ति के कारण खर्चा आया हो तो उसके प्रति का जो गुस्सा था, वो सारा आपको दिवाली काली चौदस के दिन निकाल देना। वो निकालने के बाद दिवाली के दिन आप नया पुराना जमा उधार पूरा खत्म करके, जो भी बैलेंस उधार ज्यादा है तो उधार का बैलेंस आप कंटिन्यू पूरा लिख के रखोगे। वो लिखने के बाद इसके नीचे कंकु से किया जाता है बाकी सारा प्रोसीजर कंकु से किया जाता है। कंकु से आप जो भी प्रोसीजर करोगे वो कंकु के प्रोसीजर में आपको श्री सवा भी लिखना है और बाकी आपको कंकु से 9 चांदला, साथिया बड़ा, ये सब करने के बाद खास आपको अपनी इच्छाएं, क्यों पता है? क्योंकि नया शुरू कर रहे हो। आज ही दिवाली है, आज पुराना खत्म कर दिया, आज से ही नया शुरू करोगे। तो आपको आने वाले साल में क्या चाहिए? हमें वो धन्वंतरी देव से या हमारे इष्ट देव से ये प्रार्थना करनी है कि किनके जैसा, तो कुबेर जैसा धन भंडार भरपूर हो जो। समझ में आ रही है आपको ये बात? आपको ये लिखना है कि धन्ना शाली भद्र की जैसी रुद्धि हो जो। अपने अपने जो भी इष्ट देव के जो लिखते हो ना आप, किसी कम से कम 5 बड़ी व्यक्तियों का, जो हमारे बहुत बड़े परमात्मा के लगोलग जो चीज हो गए हो, उनके जैसा लिखना है। उनके जैसी आपको 5 लाइन जरूर लिखनी है, खास करके भगवान का, कि भाई भगवान का तिरुपति बालाजी हिंदू हो तो आप ये लिख सकते हो, तिरुपति बालाजी का भंडार भरपूर हो जो। आपको सबसे पहले भगवान का भंडार भरपूर रहे ऐसा बोलना है। केसरिया जी का भंडार भरपूर हो जो, और आपको मालूम होगा ये लाइन लिखी जाती है हमेशा, केसरिया जी का भंडार भरपूर हो जो, और आप मानोगे नहीं, कल्पना नहीं करोगे, केसरिया जी का भंडार आज तक कभी खाली नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि करोड़ों लोग हर साल यही विश मांगते, सब लिखते गौतम स्वामी की लब्धि हो जो, क्योंकि लब्धि निदान है, उनकी लब्धि इतनी ज्यादा है कि उनसे लब्धि हमें मिल जाए। तो आपको दिवाली के दिन पूरा हिसाब किताब खत्म कर दिया, काली चौदस का कजिया खत्म कर लिया। अब आपको दिवाली के दिन नई लाइनें लिखनी है नए साल की अच्छाई के लिए। आपको ये लिखना है कि कुबेर जैसा धन भंडार भरपूर हो, गौतम स्वामी जैसी लब्धि प्राप्त हो, केसरिया जी का भंडार भरपूर हो, है ना? ऐसे ही आपको जो भी लक्ष्मी प्राप्ति हो तो उसके लिए जो भी अच्छे अच्छे जो भी सेंटेंस होते हैं ना, वो सब आपको लिखना है। 5 लिखो, 9 लिखो, 7 लिखो, एक ही संख्या में लिखो, 11 लिखो, जितना लिखना है लिखो। सारा आप कंकु से लिखोगे, नहीं तो लाल पेन से लिखोगे। एक चीज बहुत ध्यान रखोगे, ये एक चीज बहुत, कोई भी बॉल पेन से लिखोगे ना तो भी लाल से लिखोगे, अगर स्केच पेन से लिखोगे तो भी लाल से लिखो। और पहले के जमाने में कंकु गीला किया जाता था और लकड़ी की पेन ली जाती थी, लकड़ी की, और उससे लिखा जाता था। उससे लिखोगे बहुत बढ़िया है। थोड़ी आदत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, नहीं कर पाओ तो भी लाल पेन से लिखोगे। कभी भी शुभ कार्य में, और शुभ लाभ लिखना ही लिखना है। श्री सवा भी और शुभ एक तरफ और लाभ एक तरफ, ये 2 चीज तो आपको लिखना ही लिखना है दिवाली के दिन। देखिए हम लोग इतने महीनों से अनकॉन्शियस माइंड समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, आपको ये पता है कि सब कॉन्शियस में आपको लिखने की आदत डालनी ही पड़ेगी।
आप जो लिखते हो ना, आपका सबकॉन्शियस दिमाग में वो चीज बिठा ही लेता है। आप जो लिखते हो, शब्द शब्द में बहुत ज्यादा ताकत है। आप हर दिवाली में ये लिखोगे कि सुख समृद्धि भरपूर हो, धन भंडार भरपूर हो। आप हर दिवाली में ये लिखो। आप लिखोगे तो ऊपर वाले को देना ही देना है। अगर आपने लिखा है तो ऊपर वाले को तथास्तु बोलना ही बोलना है। जितना ज्यादा आप ये सब लिखोगे उतना ही आपके पास ये सारी चीजों का भंडार भरपूर बना रहेगा। इसलिए आपको ये चीज इस तरह से देखनी है कि भाई दिवाली है, आपने पुराना खत्म किया है, आप नया शुरू कर रहे हो, तो अब आपको ये सोच के करना है कि भाई मेरे आने वाले पूरा साल मेरी सुख, मेरे समृद्धि, किसी में भी कोई घटना हो, मेरे घर वालों को, मेरे आसपास की व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो। समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो होना ही होना है। आप जो बोल रहे हैं, आपके दिमाग को ये बात आदत में डालनी है। ब्रह्मांड को मैसेज जाएगा ही जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचो, आप जो सोचते हो ना वो मैसेज सोचते हो वो कम जाएगा, लेकिन जो लिखते हो वो तो जाएगा ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। उसको तो जाना ही जाना। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए हमेशा शुभ शुभ लिखना है, शुभ शुभ बोलना है। कभी भी किसी के लिए गलत बोलना या बुरा बोलना मना किया गया है। यही तो कारण है कि ऐसा क्यों नहीं करना। आपको किसी को बुरा क्यों नहीं करना है, आपको किसी के लिए बुरा क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि वो भी लिखा, वो भी जड़ जाएगा, तख्ती की तरह लिखा हुआ जड़ जाएगा। आप जो भी लिखोगे, जो भी बोलोगे, वो एक हथियार बनके बूमरैंग वापस आपकी तरफ आएगा ही आएगा। अगर आप मैंने पॉजिटिव लिखा है कि मेरा भंडार कुबेर की तरह मेरा भंडार भरपूर हो, तो वो पॉजिटिव बन के आएगा। और मुझे यही तो चाहिए। इसीलिए हर साल, हर दिवाली के वक्त ये चीज, त्योहारों में, खास करके दिवाली में, मेरा आने वाला साल अच्छा हो, मेरे घर में सब सुख समृद्धि पाए, कभी भी पैसे की कमी ना हो, भंडार भरपूर हो, भगवान का भंडार भरपूर हो, ये सारी चीज लिखी जाती है। ये दिवाली के दिन लिखा जाता है। उसके बाद और एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है, एक चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें अपने इष्ट देव की पूजा भी, क्योंकि खाली लिखने से इष्ट देव खुश नहीं होते। इष्ट देव को खुश करने के लिए फल, नैवेद्य और धूप दीप भी करना पड़ता है। इष्ट देव खाली आपके मन की इच्छा है और उन्होंने सुन लिया, ऐसा नहीं होता है। उनको रिझाना पड़ता है। खाली इष्ट देव को नहीं, आपके घर के व्यक्ति को भी रिझाना पड़ता है। क्या हर एक घर की व्यक्ति ये सोच के कि भाई ये मेरी ड्यूटी है, मैं काम कर लूं, ऐसा होता है क्या? वो भी हमारी और गुस्सा हो जाते हैं, वो भी हमारी किसी चीज पे नाराज हो जाते हैं, वो भी कभी जो चीज हमें चाहिए वो देने के लिए मना कर लेते हैं। तो इष्ट देव को आपने बताया ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे? आपने उनका मान नहीं बढ़ाया तो वो काम नहीं करेंगे। हमेशा देव में और भगवान में बहुत फर्क है। एक चीज जानो, देव को खुश करना ही पड़ेगा। गणपति जी को विघ्न हरता भी बोला है, विघ्न करता भी बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। शंकर जी ने
वरदान देना भी है और वरदान काटने के लिए, दिया हुआ वरदान काटने के लिए उनको दूसरा रूप लेके उसको मारना भी पड़ता है। मारते कि नहीं मारते बता दो। विष्णु जी करते हैं कि नहीं ऐसा? ये देव है, देव ये करेंगे ही करेंगे। देव जब खुश होंगे तो चारों हाथों से दौलत लुटाएंगे, देव जब नाराज होंगे तो जो है वो भी ले जाएंगे। लक्ष्मी जी के लिए भी ऐसा कहा गया है, पता है? वो रूठ जाती है ना तो घर छोड़ के चली जाती, और लक्ष्मी जी को मना कर घर में रखना पड़ता है, घर में उनको बिठाना पड़ता है। लक्ष्मी जी आए तब मुंह धोने के लिए नहीं जाना है। हम बोलते हैं लक्ष्मी जब आपको चांदला करने आए ना तो मुंह धोने नहीं जाना है। क्यों पता है? आप मुंह धोने चले गए, वो नाराज होके चली गई। तो जब भी देव कोई भी पूजा करो, धूप और नैवेद्य के बगैर, दीप धूप नैवेद्य ये तीन नहीं हो तो कभी नहीं चलेगा। इसीलिए दिवाली के दिन खास दिया दिया करना, एक वो भी एक दो नहीं, 7 या 9, 5 करो, 7 करो या 9 करो। माता जी के लिए नैवेद्य बनाओ। देखो लगभग लगभग हर एक घर में कुल देवी के लिए नैवेद्य दिवाली के दिन होता ही होता है। अलग बात है कि भी पहले होता था, अब कोई नहीं करता क्योंकि ये माता जी का और सब संभालना बहुत पड़ता है, ये हमसे नहीं होता। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? और आप देखोगे ना तो आपकी पीढ़ी में आगे पीछे जाओ, आप 50 साल पहले देखो, किसी को भी पूछो तो बताएंगे कि हाँ आपके घर में भी ये माता जी का स्थान दिया गया था और उनका नैवेद्य होता ही होता था, होता ही है। कुछ नहीं तो 1.25 किलो मिठाई भी चढ़ाओ आप, मैं ये कहूंगी। जो व्यवहार होता है वो तो बहुत होता है, ज्यादा होता है। 2.5 किलो, 5.25 सेर, ऐसा ऐसा नाप होता है। 1.25 सेर, 5.25 सेर। अगर लापसी भी होगी तो 1.25 सेर घी की होगी, मालूम है आपको? और ये दिवाली में नैवेद्य अलग से होता है, नए साल के दिन लापसी या शीरा अलग से होता है। आप देखो किसी भी चीज को, आपका जो भी रिचुअल चल रहा हो, जो परंपरा से चल रहा हो, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करोगे। क्योंकि आजकल तो बहुत से लोग एक ही जवाब देते हैं, अब नहीं होता है, अब कौन करे, ये कौन संभाले। ऐसी ऐसी बहुत से शब्द आएंगे, लेडीज के मुंह से भी निकलेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कोई अगर नहीं कर रहा हो ना, वो भी नया शुरू करे, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है, दिवाली और दशहरा दोनों, दशहरा भी पता है आपको? एक बात मैं आज दशहरा की भी बात बताना। दशहरा और दिवाली ये दोनों में जो भी आप नवरात्रि के 9 दिन माता जी के होते हैं ना, माता जी के 9 दिन है, लेकिन दशहरा के दिन आपको देव को ही फल और नैवेद्य चढ़ा के रिझाना पड़ेगा। और ऐसे ही दिवाली, ऐसे ही दिवाली और नवरात्रि में 9 दिन माता जी के हैं तो सिर्फ फीमेल देव है, सारी देवियां है, तो देव को कब रिझाओगे आप? है ना? हमारे पास 64 जोगणी है लेकिन 50 वीर है, मालूम है वो? देव कितने मालूम है? 50 है, 50। उनके भी बहुत सारे नाम है। गोगो, आसपाल, ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, ये सब 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 देवों का लिस्ट है। काल भैरव, बटुक भैरव। तो ये सारे देवों को रिझाने के लिए दशहरा और दिवाली, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ
आप अपनी ही विश लिख रहे हो, मैं मेरी विश लिख रही हूँ, मैं सारी चीज लिख रही हूँ कि भी मेरा घर का भंडार भरपूर हो, मेरे भगवान का भंडार भी भरपूर हो, तिरुपति बालाजी का भंडार भरपूर हो, केसरिया जी का भंडार भरपूर, ये सारा मैं लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ तो मुझे देवों को भी आह्वान देना पड़ेगा कि आप पधारो, आप पधारो। तो वो पधारेंगे तब जब आपने गाय का घी का दिया किया होगा, आपने दूध और कच्चे दूध और दही से चांदी के रूप में धोए होंगे, उसके ऊपर कंकु का तिलक किया होगा, फिर दशांग धूप किया होगा, क्योंकि देवों को सुगंध चाहिए ही चाहिए, आरती का गान चाहिए उनको, उनको गीत संगीत धूप नैवेद्य दीप ये सब चीज पसंद है, देवों को बहुत पसंद होती, इसके बगैर तो देव आते ही नहीं है। आप खाली हाथ जोड़ो और मन में मंत्र गिन लो और बोल दो कि सारे देव आ जाओ, और आप ये सिर्फ आपको ये सारा चीज में पहुंचा रहा हूं, कुछ नहीं होता है। एक तरीका होता है, देव आपके घर में आए, पैर रखे, कदम रखे, उसका एक तरीका होता है, और वही तरीका है नैवेद्य, फल, धूप, दीप। तो जो तिजोरी के अंदर आपके जो सिक्के सालों से पड़े हैं, जो मूर्ति छोटी सालों से पड़ी है, वो लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या गणपति, आपके घर में वो मूर्ति वो सिक्के सालों से पड़े हैं, नवग्रह का पेंडेंट नवग्रह का बनाकर रखो, और उसको भी सालों तक अंदर ही रखो। उससे क्या होगा पता है, आपके 9 ग्रहों की आपने साल में एक बार ये पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद वापस उनको तिजोरी में रख लिया, आपने अपने घरों में, अपने घर में सभी ग्रहों को एक विशिष्ट स्थान दे दिया। और ग्रह के देव भी तो देवी है। जब आप बाकी सारे देव देवी 50 देव की पूजा कर रहे हैं, 64 जोगड़ी की पूजा कर रहे हैं, तो 9 ग्रह भी तो उसमें आ गए। 9 ग्रह की भी तो पूजा करनी है कि नहीं करनी? है ना, ये तो रोज रोज हमें दिखाई देते हैं, बाकी के सारे देव हमें रोज नहीं दिखाई देते। काल भैरव, बटुक भैरव, फिर उसके बाद ये गोगो देवता, आसपाल देवता, नाग देवता, उसके बाद बहुत सारे होते हैं जो आप नाम लोगे तो घंटा गणवीर, माँ मणिभद्र देव, ये सारे बहुत सारे देव हैं। लेकिन सूर्य देव, चंद्र देव, शनि देव वो तो रोज दिखते हैं, दिखते कि नहीं दिखते? हमें ये पहले एक ही बात क्लियर करनी है, आज मैं एक ही बात आपको समझाना चाहती हूँ कि ये सब देवी देवता जो हमारे आसपास है, जो हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ रहा है, उनको हमें राजी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी दुनिया में रह रहे हैं, हम उनके घर में रह रहे हैं। मैं हूँ, ये बिंदु है जो 50 साल जिएगी, 60 साल जिएगी, 70 साल जिएगी और यहाँ से चली जाएगी। वापस आएगी तो कोई और नाम से आएगी। मेरी पुरानी चीज तो मेरे हाथ में रहने भी वाली नहीं है, मैं सब छोड़ के जाऊंगी। लेकिन ये जो भी तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, जो भी ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, 88 ग्रह है, 88, 88। और ये सब ग्रह तो यही के यही है, वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि ये उनकी दुनिया है। इंद्रदेव ये उनकी दुनिया है, वरुण देव, कुबेर देव, यम देव, विष्णु, ब्रह्मा, महेश देव, कैलाशपति, ये सारे नाम हैं उनके। ये तो यही रहने वाले। अच्छा, आपके नाम का महत्व है या नहीं?
आपके नाम का महत्व है या नहीं, बोलो। है। क्योंकि अगर कभी भी कोई जगह पर मान लो कि लकी ड्रॉ हो रहा है, मान लो कि आप हाउजी खेल रहे हो, हाउजी की टिकट है आपकी और टिकट का नंबर है 20, तो वो 20 नंबर का महत्व है या नहीं? और वो 20 नंबर की टिकट जिनके नाम से है, उसका नाम का महत्व अपने आप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आपके हाथ में जो टिकट आई ना, उसमें जो भी 15 नंबर है ना, वो 15 नंबर का भी महत्व है या नहीं? कोई लॉटरी की टिकट खरीद रहे हो, उसके ऊपर सिर्फ 5 नंबर है, वो पांचों नंबर का कितना महत्व है? अगर वो महत्व ही नहीं है तो नंबर लगेगा तो इनाम मिलेगा भी नहीं। इसी तरह हर एक देव देवी जो ये दुनिया में राज कर रहे हैं, जो ग्रह राज कर रहे हैं, वो सबका महत्व होता है। और हमें दिवाली के दिन इसका ही महत्व समझ के हमें अपने दुख दर्द दूर हो, सौभाग्य मिले, सुख मिले, शांति मिले, घर से कजिया चले जाए, इसकी प्रार्थना इन्हीं देवों से, इन्हीं 9 ग्रहों से कि भाई अगर मुझे पता है कि मेरा सूर्य वीक है तो सूर्य देव से मुझे वो रूबी की पूजा करके, माणिक की पूजा करके सूर्य देव को बोलना ही बोलना है कि भाई आप मेरा आरोग्य सही रखो। ये विधान हुआ, ये विधान हुआ। जैसे मेरे पूरा साल जो गया, उसमें ये साल में जो मैंने कमाया उसमें से मेरे पास 2 लाख रुपए बचे, तो मैंने जमा में 2 लाख रख दिया कि ये पिछले साल में से ये साल में मैं 2 लाख रुपए लेकर आगे चल रही हूँ। वो 2 लाख का महत्व कितना बढ़ेगा? बहुत। इसी तरह मैंने ये लिख दिया कि मेरा भंडार कुबेर की तरह भरपूर रहे। ये शब्द का महत्व कितना होगा? सिमिलर। ठीक है, तो हमें हमारे लिए हमारे कॉन्शियस में जाके सब कॉन्शियस में ये चीज की आदत लगानी पड़ेगी कि आपको अपने इष्ट देव से जो कुछ भी चाहिए वो सब बोल के या लिख के बताना पड़ेगा। उसके लिए ये दिवाली है। अगर किसी के घर में ये काम ना होता हो तो आप शुरू करो, कभी भी शुरू कर सकते हो। दिवाली के दिन 5 या 9 दिए जलाओ माता जी की, और उसकी फोटो तो सबके पास होती है, हर एक घर में होता है। आपके इष्ट देव की फोटो आपके पास होगी ही होगी। 5 दिया जलाओ और ले लो एक किताब, लाल रंग की पेन लो, श्री सवा लिखो, शुभ लाभ लिखो और नीचे ये लिखना शुरू करो कि केसरिया जी का भंडार भरपूर हो, तिरुपति का भंडार भरपूर हो, आदिनाथ भगवान की कृपा हो, है ना? ऐसे ही आप अपने भगवान का, जो भी भगवान आप इनका लिखो, उनकी कृपा हमेशा मुझ पर रहे, मेरे परिवार पर रहे। आप ये सारी चीजें लिखो और ये लिखने के बाद आपका आज का दिवाली का खत्म हुआ, दूसरे दिन सुबह तब भी यही लिखना है, श्री सवा भी लिखना है, शुभ भी लिखना है, लाभ भी लिखना है और नया साल का शुरू करना है। सबसे पहले 11 रुपया भी किसी भी मंदिर में या दान धर्म में लिखना ही लिखना है। इसीलिए नए साल में सबसे पहले मंदिर जाया जाता है। और पता है, मंदिर में जाओगे ना, द्वार खोलोगे ना, जो द्वार खोलने का जो उसका भी कुछ नखरा होता है, चढ़ावा होता है कि दूसरे दिन सुबह नए साल के दिन सबसे पहले आपको करना क्या है, तो मंदिर जी का द्वार खोलना है। और उसके लिए जो भी नकरा है वो नकरा लो, पूरी फैमिली के साथ उस दिन भगवान के कबाट खोलो, भगवान के मंदिर में जाओ। जाने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है मालूम है? जाने के बाद आपको सबसे पहले ये काम करना है,
जाके मंदिर में सबसे पहले झाड़ू लगाना है। मंदिर खोल के आप झाड़ू लेके सबसे पहले मंदिर में जो भी कचरा होगा वो निकालोगे, क्योंकि एक बात याद रखो कि जिसने परमात्मा के दरबार में से कचरा निकाला उसकी जिंदगी में से पूरा कचरा भगवान निकालेगा। आपको किसी का नौकर नहीं बनना पड़ेगा। अगर आपने भगवान का नौकर बना दिया, आपने अपने आप को भगवान का नौकर बना दिया ना, नए साल के दिन भगवान आपको किसी का नौकर बनने नहीं दे। ये नए साल के दिन सबसे पहले आप मंदिर जाओगे और मंदिर जाने के बाद जो भी काम होगा या जो भी कुछ होगा वो आप काम करोगे। ले एक मिनिट, ईशु ईशु लेना आनल मम्मी से जरा के क्लास चालू છે। हाँ हाँ, यही कारण है कि हमें नए साल के दिन सबसे पहले मंदिर में जाना है, मंदिर का पानी भरना है, मंदिर में से झाड़ू निकालना है, भगवान की सबसे पहले पूजा करनी है, ताकि पूरे साल तक आप किसी के भी नौकर ना बनो, किसी का भी आपको दास बनने की जरूरत ना पड़े। आप आपके अंदर दारिद्र्य रहे ही नहीं। जिसने भगवान का काम किया ना वो राजा बन के रहेगा पूरे साल तक। नए साल में सबसे पहले खतवनी में इसीलिए मंदिर जाते हैं, मंदिर में सबसे पहले नकरा चढ़ाते हैं। 100 रुपया चढ़ाओ, 51 चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, लेकिन नए साल में सबसे पहला रुपया आपकी जेब से मंदिर के भंडार के लिए ही जाना चाहिए। बात बहुत साधारण है, लेकिन ये बात संस्कार डालने की है कि जैसे ही साल खत्म हुआ सारे कजिए घर से निकाल दो। काली चौदस के दिन कजिया निकाल दिया, दिवाली के दिन आपने मुहूर्त कर लिया, मुहूर्त वूरत सब लगा दिया, सब चीज कर ली। अब आप क्या करोगे? नए साल के दिन नया खाता खोलोगे और ये हर दिवाली के दिन करोगे। हर दिवाली नया साल हमारे अपने लिए है, हमारे खुद के लिए होता है। हर एक व्यक्ति के लिए अपने लिए होता है। आप अपने आपको, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को समृद्धि से ही भरपूर रहे। और इसी तो विश, यही तो हम विश करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। आप पता है विश भी क्या करते हो सबसे? आपका पूरा साल बहुत बहुत मुबारक जाए। साल मुबारक बोलते हैं हम, साल मुबारक बोलते हैं ना अपने गुजराती में। आपका नया साल बहुत सुख समृद्धि से भरपूर जाए। तो यही विश हम अपनी फैमिली के लिए भी करेंगे, खुद अपने लिए भी करेंगे। तो आज सबसे पहले एक बात ये जान लो कि दिवाली आपके अपने लिए ही होती है। आपको अपने पुराने संजोग से बाहर आना है। ईशो ईशो ले भाई, मम्मी છે, મમ્મી નથી ઘરે? तो आप हमेशा हर दिवाली के दिन अपने पुराने सारे तकलीफों का, अपने सारे कजिया, कंकास, झगड़ा, फैमिली के झगड़े, बच्चों के साथ के आपके अनबन, बड़ों की अनबन, जो भी फैमिली के जो भी कजिया है वो सबको बाहर निकालना है। काली चौदस के दिन एक और काम किया जाता है, आजकल नहीं करते हैं, पहले के ज़माने में होता था, ये बहुत ज़रूरी होता था। आप खास किसी भी
जो भी ऐसे देव के मंदिर में जाना होता है, हनुमान जी के मंदिर में लोग खास जाते थे, और जो दिया होता है ना, वहां पे जो दिया होता है ना, उसके ऊपर अपना कटोरी लेके जाते थे, उसके ऊपर उसका काजल लेते थे और वही काजल आंख में लगाते थे, इसलिए उसको काली चौदस बोला गया। गांव में तो हम सब ये वर्चुअल करते थे। काली चौदस के दिन खास ये दिया किया जाता है, और जो भी आप अपना दिया लेके जाओगे, वो दिया उसके ऊपर, उनके दिया के ऊपर ही अपनी जो भी कटोरी रहती है वो पानी भर के जाते हैं कटोरी में, और वो कटोरी, पानी की कटोरी ही उनके दिए के ऊपर, भगवान के जो दिया होता है ना, उसके ऊपर ऐसे रखा जाता है, और उसके ऊपर जो काला कालिख लगती है ना, वो कालिख आंखों में लगाई जाती है, सुरमा आंजा जाता है उसका। और ये कहा जाता है कि ये कालिख लेके आप अपनी आंखों में लगाओ, और पूरा आपके अंदर का जो भी कचरा है, क्योंकि आप कालिख लगाओगे ना, जैसे ही काजल लगाओगे ना, आपकी आंखों से पानी निकलेगा। तो काली चौदस के दिन ये वर्चुअल होता है, दिवाली के दिन का भी अलग वर्चुअल होता है, और ये सारी चीज नए साल के दिन आप नई खतवनी करोगे, नई चीजों को, नया अकाउंट खोलोगे, नई बातचीत लिखी जाएगी। ये सारा हमारे लिए दिवाली का त्योहार का जो भी कार्यक्रम है वो होता है। और उसके बाद तो आप जानते हैं दिवाली 4 दिन 5 दिन के लिए होती है। भाई दूज के दिन भाई बहन के एक दूसरे के घर जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए, क्योंकि आप नया ईयर आपकी फैमिली के साथ मनाओगे, अपनी खुद की फैमिली के साथ। और भाई दूज है वो आप अपने फर्स्ट कजिन, मतलब भाई बहन और उनके साथ, भाई बहन के घर जाए या बहन भाई के घर जाए, तो ये स्पेशली दूसरे दिन अपनी फैमिली के यहाँ जाना, और ये सब जो भी वर्चुअल है ये सारा इसके लिए होता है, ताकि आप अपनी फैमिली और अपने लोगों से बहुत अच्छे से फैमिली संबंध मेंटेन कर पाओ, और ये सारी चीज आप बहुत अच्छे तरीके से, एक साल का खत्म हुआ, फिर दूसरे साल आएगा, पूरा साल का जो इकट्ठा हुआ वो सारा वापस हम दूसरी काली चौदस पे खत्म करें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। हर एक व्यक्ति को दिवाली बहुत ही जोर से मनानी है। पूरा हमारा साल भर का जो भी कजिया है उसको बाहर निकालना है, भजिया बनाना ही बनाना है काली चौदस के दिन, और भजिया भी तो खाना है, 4 रास्ते पे जाके डालना है, आप डालना चाहे डाल सकते हो, ये बोल के ही डालो कि मैं मेरे घर के सारे कजिए घर से बाहर फेंक रहा हूँ। आपको ये बोल के भजिया बाहर फेंकना है। ये सारी चीज है, ये करने से होता है। ये आपने किया ना, अगर किसी के लिए आपके मन में गुस्सा है या किसी को आपके लिए गुस्सा है, उसका नाम लेके ये भजिया एक बार बाहर फेंक कर देखो तो सही, उसके लिए का जो भी, उसके प्रति का जो भी सारा क्रोध कचरा होगा ना, सब निकल जाएगा। ठीक है, तो आप ये जरूर करोगे, चौदस के दिन ये चीज जरूर करोगे। शनिवार को है, शायद शनिवार को मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर हुआ, अगर संभव हुआ तो मैं जरूर रखूंगी। मैं अभी से मना नहीं कर रही हूँ। अगर ये आईडी भी मिल पाया या कुछ पॉसिबल हुआ तो हम काली चौदस के दिन शनिवार को भी जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि दिवाली की ही बातें करेंगे, दिवाली का ही सब वर्चुअल करेंगे, आध्यात्मिक काम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अगर हो पाया तो करेंगे, नहीं तो फिर सीधा मंगलवार को मिलेंगे। ओके, चलो अभी आप ध्यान शुरू करो, ध्यान का समय हो रहा है। बाद में कुछ होगा क्वेश्चन तो जरूर मैं आपको समय दूंगी। प्राणायाम करो, आंखें बंद,
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। प्राणायाम करेंगे।
भ्रामरी प्राणायाम। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरिओम। हरिओम हरिओम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। અવાજ ફરીથી બોલો, અવાજ બહુ ધીમો છે. ના, હા બહુ ધીમો છે. હા બોલ બોલ, અવાજ બહુ ધીમો આવે છે. હા બોલ. હા. તમે એ તો કશામાં બી બનાવી શકો, ચાંદી ઉપર બી બનાવી શકો. નોર્મલી કાચબા ઉપર ખાસ બનાવે છે, પણ તમે ગમે એના પર બનાવી શકો. કાચબો એટલા માટે કે સૌથી આયુષ્ય વધારે કાચબાનું કહેવાય. કોઈનામાં પણ સૌથી વધારે આયુષ્ય કાચબાનું હોય. તો કાચબાની પીઠ ઉપર, એની પીઠ એકદમ નક્કર બી હોય છે, આપણે જાણીએ છીએ. એટલે કાચબાની પીઠ ઉપર નવે નવ ગ્રહનું બેસાડવું એનું મહત્વ બહુ છે. હા ચાલે, ગમે તેમાં ચાલે. ગમે તેમાં, ખાસ કરીને મંદિરમાં જે પણ તમે गर्भगृह मंदिर में जो भी आप प्रतिष्ठा के वक्त स्पेशली काचबा नीचे रखा जाता है. कोई भी मंदिर उसको ऐसा ये सोचने के लिए कि भी ये लंबी, इसकी आयु बहुत लंबी हो. इसके लिए अगले अगले इसके लिए होगा तो अगले क्लास में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन सी दिशा में कौन से ग्रह को बिठाया जाता है. हाँ ना, नए साल के दिन आप जो लिखोगे, आपने नया खाता शुरू किया, तो उस दिन संवत डेट सब चेंज हो जाएगा.
मान लो कि आप आज लिख रहे हो तो संवत 2075 लिख रहे हो, तो दिवाली के दिन 75 लिख रहे हो क्योंकि वही चालू है, और नए साल के दिन 76 आ जाएगा। तो संवत बदल जाएगी, वार बदल जाएगा, नाम बदल, आपको सब लिखना है कि ये संवत, ये वार, ये दिन, इतने बजे समय ये नया साल शुरू हो रहा है। और वो नए साल में मैंने 1001 रुपए मंदिर जी की भंडार के लिए सबसे पहले जमा कराया। आप ऐसे नया खाता खोलोगे। मेरी बात समझ में आई कुछ? હા, હું એનો ફોટો જે અમે દર વર્ષે દિવાળીનું લખીએ છીએ ને એનો ફોટો તમને ચોક્કસ મોકલી આપીશ। એટલે वो कैसे लिखना है, कैसे स्वस्तिक करना है, कैसे चांदला करना है, सारी चीज मैं आपको डिटेल से आपको फोटो भेज दूंगी। ठीक है? हाँ हाँ, હું જેલ સીમા બી મૂકી દઈશ, નો પ્રોબ્લેમ, જેલ સીમા મૂકી દઈશ। હા, મૂકી દઈશ। ઓકે, જેલ સીમા પણ મૂકી દઈશ, ચોક્કસ મૂકી દઈશ। हाँ, हाँ, सब चीज का महत्व है, इसीलिए तो आपको चौपड़े में नया लिखना है ना, तो वही तो अच्छा अच्छा लिखना है। आप जो चाहते हो आने वाले साल में ये चीज अच्छी अच्छी हो, तो वही आपको लिखना है। सो फरीથી બોલ મને જરા। चौपड़ा चौपड़ा खरीदने का संवत 2061 के कार्तक सुद एकम वार तारीख ईस्वी सन आदि श्री गौतमाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री शारदाय नमः, श्री केसरियाजी महाराज का भंडार भरपूर हो जो, श्री आदिनाथ दादा भलू करजो, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा भलू करजो, श्री शत्रुंजय दादा भलू करजो, श्री पल्लविया पार्श्वनाथ दादा भलू करजो, श्री श्रेयांशनाथ दादा भलू करजो, श्री शांतिनाथ दादा शांति करजो, श्री धर्मनाथ दादा भलू करजो, श्री अभय कुमारनी बुद्धि होजो, श्री बाहुबली जी नो बल होजो, श्री गौतम स्वामी जी की लब्धि होजो, श्री धन्ना शालीभद्र की रुद्धि होजो, श्री महावीर स्वामी दादा भलू करजो, श्री सिद्धाचल जी की यात्रा होजो, श्री कैवन्ना सेठ का सौभाग्य होजो, रुपया 1 उसके पीछे 00000000001 सवा रुपया लाभ होजो।
संवत 2061 कार्तक सुद एकम वार तारीख ईस्वी सन आदि श्री गौतमाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री शारदाय नमः। श्री केसरियाजी महाराज का भंडार भरपूर हो जो। श्री आदिनाथ दादा भलू करजो। श्री संखेश्वर पार्श्वनाथ दादा भलू करजो। श्री शत्रुंजय दादा भलू करजो। श्री पल्लविया पार्श्वनाथ दादा भलू करजो। श्री श्रेयांशनाथ दादा भलू करजो। श्री शांतिनाथ दादा शांति करजो। श्री धर्मनाथ दादा भलू करजो। श्री अभय कुमारनी बुद्धि होजो। श्री बाहुबली जी नो बल होजो। श्री गौतम स्वामी जी की लब्धि होजो। श्री धन्ना शालीभद्र की रुद्धि होजो। श्री महावीर स्वामी दादा भलू करजो। श्री सिद्धाचल जी की यात्रा होजो। श्री कैवन्ना सेठ का सौभाग्य होजो। रुपया 1 उसके पीछे 0,000,000,000,001 सवा रुपया लाभ होजो। ये सारी चीज़ दिवाली के दिन आप सबको अपने बुक के अंदर, किताब के अंदर लिखनी है और यही सारी चीज़ आप दिवाली के दिन पूजा में बैठ के लाल रंग के पेन से चाहे एक पेज पे लिखो, चाहे एक पूरे पत्ते पर, बुक पर लिखो, लेकिन लिखो जरूर। अगर 5-7 लोग, घर के सब लोग अगर बैठकर लिखेंगे तो सब एक एक पेज ले सकते हैं। एक नोट में कोई भी एक व्यक्ति घर की नोट में लिखेगी, लेकिन सारी चीज़ लाल पेन से लिखोगे। उसके ऊपर एक स्वस्तिक बनाओगे और स्वस्तिक इस प्रकार से बनाओगे। स्वस्तिक के बीच में 4 कंकु के साथिये बनाओगे। उसके ऊपर 9 कंकु के साथिये बनाओगे। उसके ऊपर श्री गौतमाय नमः लिखोगे और इस प्रकार से आप पूरा पेज भरोगे। ये दिवाली के दिन करना है। ये दिवाली के दिन करना है। दिवाली के दिन ये करने के बाद नए साल के दिन दूसरे पेज पे आपको, दूसरी बुक में, नहीं तो इसके ही दूसरे पेज पे आपको जमा उधार इस प्रकार से नया खाता भी बनाना है। वो भी दिया, धूप, दशांग धूप, नैवेद्य, फल सब रख के ही, शेरडी रख सकते हो, नैवेद्य में पतासा रख सकते हो, लेकिन आपको नैवेद्य भी रखना है, फल भी रखना है, सुपारी रखना है, पान, सुपारी, लविंग, ये सारी चीज़ रखी जाती है पूजा में। कपूर की गोटी रखी जाती है, दिया किया जाता है और ये सारी चीज़ करके ही आप ये खाता लिखोगे। दिवाली के दिन खाता बंद करोगे, नए साल के दिन नया खाता खोलो। हरि ओम।